बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantabpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। Today's lecture is from Science of Grade 8 and this lecture is from chapter 4, that is about pollutants and their effects on environment. It's our lecture 9, in which we are going to discuss and identify the human activities that are affecting the wildlife and energy resources badly. You know, the wildlife is necessary to maintain the natural ecosystem, and the energy resources are necessary not only to maintain the balance on the surface of earth but also to fulfill the needs of human beings. So how are the human activities and what are those activities that are affecting these two important factors badly? The SLO that will be achieved through this lecture is identify human activities that have long-term adverse consequences on the environment. Two of these consequences are lack of energy resources and the threat to wildlife. So open your textbook from topic and you will find the topic 4.8 named as wildlife. Wildlife is the beauty of this world which need an area to live in and reproduce. Or in other words, each wildlife need a habitat as human need a home or a place to live and grow. So habitat fulfills the needs of wildlife in terms of food, shelter, protection. When the habitats are destroyed, so where these wildlife will go? Is there any other planet for these wildlife? Or there any other habitat for this wildlife? Can human beings live inside the water or in the air? No, a big no. So similarly, wildlife needs their own habitat to live and grow. If it is destroyed by any means, they cannot survive anywhere else. Forests are the natural habitat for most of the wildlife. But the cutting down of trees by humans results in the loss of habitat for the wildlife. As we have discussed in our last lecture, in our previous lecture number 8, while we were discussing the effects of deforestation, we studied that when trees are cut down, the habitats of animals and plants destroys. So, by the clearing of land for agriculture and construction purposes is also a leading cause of loss of wildlife habitat because it destroys the trees. The loss of plains, lakes and other natural environment also destroy the natural wildlife habitat. We are destroying the plains by construction of high-rise buildings. We are destroying the lakes due to water pollution. We are polluting the water of lakes, and as a result, the aquatic life is suffocating severely. We, the humans, are spoiling the mountains, the lands, the water, the air. So where these animals will go? Is there any other place for these animals? Our humans are constructing or rebuilding their habitats? Are they doing anything to rebuild or reconstruct their habitats? No, not at all. So the only action that remains to these wildlife, these innocent wildlife, is their death. Many species we have lost yet. Indus dolphin, dinosaurs, polar bears are even under the threat of being extinct. Habitat loss is resulting in the permanent loss of wildlife species. Introducing the invasive plant species in an environment is ultimately removing the natural plants of that area. Humans are polluting the environment that cause deaths.
आपने देखा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से बर्ड्स मौत का शिकार हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से, खासतौर पर प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स सफोकेट होते हैं और सफोकेशन ये अल्टीमेटली इन्हें डेथ की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग इन वाइल्ड लाइफ, और इसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिर्फ प्लाजास बनाने के लिए, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए, जो अल्टीमेटली ये तमाम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इनका हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से ये खुद भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लिहाजा बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारी जो अब मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से। सो वी शुड come forward and take steps to preserve these wildlife species, as these are the beauty of our land. Next page, open your page 57 and the topic is 4.10 under the heading of lack of energy resources. Human activities ने हमारे energy resources को भी badly affect किया है। Energy resources दो तरह के हैं हमारे, एक तो वो जिन्हें हम reproduce कर सकते हैं, जिन्हें रिन्यूएबल कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, और दूसरे वो जिन्हें रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी उनकी रीग्रोथ रीबर्थ नहीं हो सकती, जैसा कि कोल है, जैसा कि वुड है, जैसा कि पेट्रोलियम है, जैसा कि नेचुरल गैस है। ये तमाम के तमाम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएंगे तो हम इन्हें दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाईज इन द एनवायरनमेंट, यानी कोल है अगर, तो कोल माइंस लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा भी हों तो जिस रफ्तार से हम उन्हें यूज़ किए जा रहे हैं अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, वो उनके एक्सेसिव यूज़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होती चली जा रही हैं, कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जितने भी ज़्यादा हों हमारे पास लिमिटेड सप्लाईज में अवेलेबल हैं। The four non-renewable energy resources are coal, nuclear elements, oil and natural gas. The renewable resources are naturally available in bulk and reformed itself in very short time. और ये renewable energy resources हैं solar, wind, hydro, biomass and geothermal. ये वो resources हैं जिन्हें बार बार यूज़ करने के बावजूद ये ख़त्म नहीं होंगे। सूरज की तवानाई हमें डूम्सडे तक मिलती रहेगी, हवाएं चलती ही रहेंगी, पानी ज़मीन पे सर्कुलेट होता ही रहेगा, बायोमास जब तक लाइफ स्टॉक जिंदा है बायोमास अवेलेबल रहेगा, अर्थ की एनर्जी जब तक डूम्सडे नहीं आ जाता अवेलेबल रहेगी। सो ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक दफ़ा यूटिलाइज होने के बाद ख़त्म नहीं होते बल्कि ये कंटिन्यूसली अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। सो इन रिसोर्सेज को तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन असल ख़तरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एक्सेसिव यूज़ की वजह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को है, जिन्हें हम रिप्रोड्यूस या रीगेन नहीं कर सकते। कोयले का एक पार्टिकल और एक किलोग्राम कोयला बनाने के लिए सदियों दरकार है। जहाँ पे टनों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे कोयला चाहिए होगा तो कितना अरसा लगेगा, ज़रा सोचिए। लेकिन हम एक्सेसिव यूज़ की वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाती है एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा होती चली जाती है। ये एनर्जी की डिमांड ट्रांसपोर्ट में भी है, ये एनर्जी की डिमांड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी है, ये एनर्जी की डिमांड इंडस्ट्री के हर सेक्टर में है। कोई भी इंडस्ट्री हो, पेंट की हो, कपड़े की हो, सीमेंट की हो, उसे अपनी फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए ही होती है। इस बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली इसमें कमी का बायस बन रहा है। The population is increasing and the consumption of available resources is declining. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती चली जा रही है उसकी एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज करती चली जा रही हैं। इस लिहाज से इसके मुकाबले में एनर्जी रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं कर रहे बल्कि वो मुसलसल यूज़ होने के बायस ख़त्म होते जा रहे हैं। The human consumption of non-renewable energy resources to fulfill the energy requirement is increasing day by day, and the cause is overpopulation. Water, fossil fuels and forests are soon to be vanished from the earth due to the
ड्यू टू दिस हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। जिस रेट से, जिस कदर तेज़ रफ्तारी से हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, दरख्तों का ज़िया कर रहे हैं, दरख्तों को काटे चले जा रहे हैं, जल्द ही ये रिसोर्सेज ज़मीन से ख़त्म होने का खदशा है। पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ऑल्सो डिप्लीटिंग द एनर्जी रिसोर्सेज। एक तरफ तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सेसिव यूज़ की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने की वजह से एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पोल्यूशन है जो कि एनर्जी रिसोर्सेज को स्पॉइल कर रही है। जैसा कि वाटर पोल्यूशन है, अगर हमारी कोई वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से, डंपिंग ऑफ वेस्ट की वजह से वो वाटर रिसोर्सेज स्पॉइल हो रहे हैं, वो किसी यूज़ में नहीं आ रहे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक तो हमारा लैंड को कंज्यूम कर रही है, जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे ज़्यादातर है, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारी एग्रीकल्चर यानी क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है, वर्ल्ड की न्यूट्रिशन सप्लाई इफेक्ट होती है, और लैंड रिसोर्सेज ख़राब होते हैं कि जिस ज़मीन पे पौधे को उगना चाहिए था उस ज़मीन पे इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, यानी ज़मीन वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। There is a need to spread awareness among populations about developing the renewable resources of energy. These natural resources are available in bulk. They are cleaner source of energy and do not pollute the environment. So ज़रूरत इस अमर की है कि हम बजाय इसके कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ कदम बढ़ाएं, जैसा कि सोलर एनर्जी है, जैसा कि विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, बायोफ्यूल्स हैं या जियो थर्मल एनर्जी है। ये तमाम रिसोर्सेज एक तरफ तो ये फ्रीली अवेलेबल हैं, यानी नेचर में प्रेजेंट है, दूसरा ये रिन्यूएबल है, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। सूरज ने रोशनी देते ही रहना है, हवाएं चलती ही रहेंगी, पानी अवेलेबल ही रहेगा, बायोफ्यूल जब तक लाइफ स्टॉक है, जब तक एनिमल्स हैं, हमें अवेलेबल ही रहेगा, और ज़मीन की एनर्जी भी हमें अवेलेबल रहेगी। एक तरफ तो ये बल्क में अवेलेबल है, ख़त्म नहीं होने वाले, दूसरा ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में ये रिसोर्सेज बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, जो कि एक तरफ तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और दूसरा हमारी एनर्जी की नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। दैट वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़ that are destroying or affecting our natural habitat. Next comes the homework. Just open your textbook at page 60 and 61. First question is, fill the circle of the correct option against each statement. You are provided with a statement. You have to analyze the statement and then find out the right answer from each statement carefully. Here you will solve question number 3. The quality of environment is declining due to. यह आपने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, आप अभी भी इसे सॉल्व करेंगे कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी किस वजह से ख़त्म हो रही है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या इन तमाम फैक्टर्स की वजह से। सो आप इसे दोबारा एक दफ़ा फिर सॉल्व करेंगे। पार्ट बी की तरफ आइए, पेज 61 पे, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपने अभी हाल ही में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हैं, सो आप इन दोनों में इजीली फ़र्क बयान कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क गेनिंग हो जाए। नेक्स्ट कम्स द रिव्यू एक्सरसाइज। फ्रॉम हेयर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम पार्ट ए ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रीयूज, इट कैनॉट बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी प्री प्रोसेस्ड। सो जो भी स्टेटमेंट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में सही है आप उससे मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे रिव्यू एक्सरसाइज के। यहाँ से आप पार्ट सी की तरफ आइए। फ्रॉम हेयर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव लॉन्ग टर्म एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट। फिर आप अपना समर पैक देखिए, समर पैक से पेज 49 ओपन कीजिए। यहाँ से आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे 4.8। कुछ एडवर्स इफेक्ट दिए गए हैं एनवायरनमेंट के, जैसा कि एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन है। आपने वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एनलिस्ट करना है जो इन एडवर्स इफेक्ट्स का बायस बन रही हैं।
एसिड रेन कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बारिश कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग किन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन की वजह कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आपने हर एडवर्स इफेक्ट के अगेंस्ट 2 ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिखनी हैं। थैंक यू वेरी मच।